પાણી કરીને બેસ્યા છો ને થાકેલા થાકેલા તો નથી બેસ્યા ને. You guys, I hope you know something called breakfast. Breakfast should be done 8 a.m. or 10 a.m. sharp. Heavy breakfast. ठीक है, पावर रहता है लेक्चर में. ख्याति, there is nothing called as a list of important topics. Okay, I only cover important topics which I feel that these are important in the lectures. अभी उससे भी important ज्यादा कुछ नहीं हो सकता. Are you getting my point? Out of 100 things, we are already doing some important 50 things. Now you cannot squeeze that. Understand my point. Try to understand my point. There are so many things. अगर इससे भी हम ज्यादा निचोएंगे तो एग्जाम में हमारा बैंड मिल जाएगा. ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ. हाँ, एकदम मजा आवा, गजब, चकाचक. No. I would request that from January onwards, you should focus more. You should complete the part from January onwards पहले, and then you should go back 6 months, December, November, October. Okay. I cannot suggest important points because I think that I only cover important points from examination point of view. जो मुझे important नहीं लगता है, जैसे अभी ये क्या है, ये कुछ political topics होते हैं, we don't cover all those things. Okay. Okay guys, let's start now today's lecture. ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो अभी. Any new students? आहट के बारे में मैंने पढ़ा लिया लास्ट लेक्चर में, आई गेस. वो रेलवे वालों का था, रेलवे पुलिस फोर्स का जो प्रोजेक्ट था, राइट? We did this in the previous lecture. Okay. Vaibhav, that is answer to your question. ठीक है? Okay, let's go. Okay, the first topic of the day is Victory Day. So what is this Victory Day? So Victory Day is a grand celebration of Russia. Why do they celebrate Victory Day? Because on this particular day, May 9th, 1945, the instrument of surrender was signed by Germany to Soviet Union. ठीक है, Germany surrendered to Soviet Union in Berlin. So that day is celebrated as Victory Day. ठीक है? But the Allied powers means Western powers, France, Britain, they celebrate Victory Day on May 8. जो यूरोपियन पावर्स है वो लोग कब सेलिब्रेट करते हैं? May 8 को करते हैं. Since it was under the presidency of Leonid Brezhnev that Victory Day is celebrated as national holiday in Russia. Okay. Leonid Brezhnev, he was the president who started celebrating Victory Day as a national holiday in Australia. Russia क्या करता है ये दिन? They show off. क्या show off करते हैं? Their modernization of army, weapon systems, and overall military in general. Okay, मार्च पास करवाते हैं, प्रेसिडेंट आके स्पीच देते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल आपको पता होगा, पुतिन gave a speech recently on this particular day. Okay, so that is about Victory Day. लिख लो. Yes. प्रीवियस ईयर, आज से 1 साल पहले क्या हुआ था? इट वॉज द 75th सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री डे. फ्रॉम 1945 से आप गिन लो तो 2021 में कितने साल हो रहे थे? 2020 में
75 years. So even India sent its contingent in this Victory Day parade. Okay, समझ रहे हो कब भेजा गया था और क्यों भेजा गया था? 2021 में भेजा गया था, ठीक है, फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ 75th विक्ट्री डे. आप लोगों में से कोई ऐसा है इंसान, जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई वांटेड टू नो, हु इज एक्साइटेड फॉर टॉप गन? टॉप गन मूवी आप, आई होप आप लोगों ने देखा हो. ना देखा हो तो एग्जाम के बाद देख ले, ठीक है. टॉप गन, आई एम अज्यूमिंग सिद्धांत दैट यू हैव नॉट सीन दिस मूवी. बाद में देखना तो मुझे याद करेगा आपने, ठीक है, एग्जाम के बाद. अभी अभी मत देख. ओके गाइस, लिख लिया आप लोगों ने? चलते हैं आगे, ठीक है. ओके, I said it was celebrated because Germany signed instrument of surrender. जर्मनी ने सरेंडर किया था रशिया को ऑन 9th मई, ठीक है, ऑफिशियली डॉक्यूमेंट साइन करके इन बर्लिन, ठीक है. हाँ अंश, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है. गेटिंग माई पॉइंट? चलो ओके. ओके गाइस, आपको पता है आई गेस एक महीने पहले मैंने काफी डिटेल में इंडिया नेपाल रिलेशनशिप कवर की. We talked about the hydroelectric projects. We talked about the disputed territories between India and Nepal. We talked about the various rivers that are disputed between India. And we talked about a bridge which is constructed by India between India and Nepal. Maitri Setu. Do you remember all these things? मैं ये पढ़ा चुका हूँ पहले. What I'm trying to say that you can understand the importance of India and Nepal, that it is in continuous occurrence. बार बार न्यूज में आ रहा है, ठीक है. So prepare this topic अच्छे से. पुराने स्टूडेंट्स है जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं, दे कैन सी प्रीवियस लेक्चर्स, मैंने बहुत डिटेल में करवाया है. ओके, सो लेट अस डिस्कस दिस टाइम. देखो रिसेंटली ऑल ऑफ यू नो दैट एक महीने पहले क्या हुआ था, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आके गए, ठीक है. उनका नाम क्या है भाई? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? प्यारा सा नाम है, प्रेम बहादुर देबुआ, ठीक है. बहादुर तो होते ही है सबके सब, और देबुआ, ठीक है, प्रेम बहादुर देबुआ, वो उनके प्राइम मिनिस्टर का नाम है. वो एक दो महीने पहले इंडिया आके गए, तो उन्होंने मोदी जी को भी इन्विटेशन दिया कि आप बहुत टाइम से घूमने नहीं आए तो घूमने आ जाइए, ठीक है. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी रिसेंटली वेंट टू नेपाल फॉर द 5th टाइम, ठीक है. उनके पहले टर्म में 4 बार गए थे और दूसरे टर्म में ये पहली बार गए, ठीक है, सिंस 2019. India and Nepal relationship is very much important. Nepal is our Himalayan neighbor and we share historical, religious and cultural affinity together. ठीक है. क्या है कल्चर? The answer is Buddhism. तो आपको पता होना चाहिए that recently बुद्ध पूर्णिमा गया है. आपको पता है बुद्ध पूर्णिमा is celebrated on a full moon day to celebrate the birthday of गौतम बुद्ध, ठीक है. गौतम बुद्ध का बर्थडे होता है बुद्ध पूर्णिमा को, जब फुल मून डे होता है. तो उसी दिन मोदी जी गए थे नेपाल घूमने के लिए एट द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा. लॉर्ड बुद्धा का बर्थ प्लेस क्या है, नाम क्या है उसका?
ओके, चलो, किसी को नहीं पता, वेरी गुड। द आंसर इज लुम्बिनी। यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, लुम्बिनी, दैट इज कंसिडर्ड एज द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। और बुद्ध भगवान का कौन सा वाला हैप्पी बर्थडे था? 2566 वाला हैप्पी बर्थडे था, ठीक है। तो वहां पे जाके इंडिया ने क्या कहा है कि हम यहाँ पे बुद्धिस्ट विहार बनाएंगे। विहार मतलब रहने की जगह, ठीक है। इंडिया असिस्ट करेगा और उसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया है, ठीक है, मतलब भूमि पूजन करवाया है। Then Prime Minister said that I really appreciate Nepal because they have conserved their culture. आपने अपना कल्चर बचा के रखा है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, ठीक है। और उन्हें को एंड ही आल्सो सेड दैट इंडिया एंड नेपाल रिलेशनशिप इज स्ट्रांग एज हिमालय, ठीक है। हिमालय जितना मजबूत है हमारा प्यार, ठीक है। कभी कभी झगड़ लेते हैं लेकिन प्यार बहुत, ठीक है। लाइक आई सेड, इन ल्यूम्बिनी इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज वो बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ठीक है। उसका भी शिलान्यास किया गया है यहाँ पे। और ये इंडिया बनाएगा इन अ वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट फैसिलिटी, ठीक है। क्या बनाएंगे यहाँ पे लुम्बिनी में, बर्थ प्लेस पे एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी बनाएंगे, ठीक है। नाउ द इम्पोर्टेंट थिंग इज अगेन दिस पार्ट, अरुण इज अ रिवर फ्लोइंग बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। उसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का, और वेस्ट सिटी पर भी एक प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बारे में बात की है। इंडिया ऑल्सो ऑफर्ड कि हम आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रूपांदेही में एक सैटेलाइट कैंपस ओपन करके देंगे, उसके बारे में बात की गई है। और रीसेंट इश्यूज एंड डेवलपमेंट की बात की गई है, ठीक है। कुछ डाउट हो तो पूछ लो, वरना फटाफट लिखना चालू करो। इंडिया नेपाल के रिलेशन के लिए इसके पीछे भी एक पीपीटी है, ठीक है। और जिसको भी ये बोरिंग लग रहा है, आप 2 साल पहले फ्लैट का पेपर देख लेना। इंडिया नेपाल के ऊपर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इंडिया और नेपाल के रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। सो ये मैं इसके लिए कह रहा हूं ताकि आप थोड़े मोटिवेटेड रहें कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर। एनी डाउट्स इन दिस तो पूछ सकते हो, वरना फटाफट लिखो फिर आगे बढ़े। शिलान्यास करना मतलब ये कुछ ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना अपने, यार मुझे पता नहीं है लेकिन गुजराती में कहिए ना शिलान्यास करियो, मतलब वो कुछ पत्थर पत्थर भूमि पूजन टाइप होता है दोस्त, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी जैसे, ठीक है। और श्रीनिधिका, हमें इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि क्या है, हर एक आईआईटी, बहुत सारी इंडियन यूनिवर्सिटीज ऐसी एमओयू साइन करती रहती है। मैं ये इसके लिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज मोदी जी बोल के आए ये सब, ठीक है। मतलब ये जब मिलने गए हैं तब मीटिंग में बात हुई है ये सारी, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। गेटिंग माई पॉइंट? स्टेप बिफोर द कंस्ट्रक्शन, मीनिंग ऑफ शिलान्यास। हाँ तो मैंने वही तो कहा है यार, वो भूमि पूजन, उसे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में शिलान्यास कहते होंगे शायद, ठीक है। अरे अंश, ये तो कही दी तुम्हें, सेम टू सेम की ना मैं। एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, मतलब सेम रहता है, ठीक है। ओके गाइस, चले आगे। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, कैन यू टेल मी द प्लेसेस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? इंडिया और नेपाल के ऊपर, इंडिया और नेपाल के बीच में कौन से रीजन में डिस्प्यूट है? भाई सिक्किम में लेके कोई डिस्प्यूट नहीं है हमारा नेपाल के साथ। ओके, वेरी गुड। काला पानी,
लेपू लेक एंड लिम्पियदुरा. काला पानी, लेपी लेक एंड लिम्पियदुरा. These three are disputed territories between India and Nepal. And all of these three disputed territories that I just spoke is located in Uttarakhand. ठीक है? But there is one more disputed place called Susta. 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 This place is disputed in Bihar. ठीक है? टोटल 4 डिस्प्यूटेड प्लेस है. 3 डिस्प्यूटेड कहाँ पे है? उत्तराखंड में. और एक सुस्ता करके डिस्प्यूटेड प्लेस है, वो कहाँ पे है? बिहार में. ओके, लेट्स गो अहेड. देखो और कौन सी बात हुई है. कनेक्टिविटी में 35 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर रेलवे लाइन बिटवीन जयानगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल. ठीक है, ये पता होना चाहिए. सोलू कॉरिडोर क्या है? इट इज अ कॉरिडोर थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन इंडिया एंड नेपाल. ठीक है, इंडिया हैज ऑलरेडी लॉन्च रुपे कार्ड इन नेपाल. आपको पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी कंट्रीज में रुपे कार्ड चलता है. 4 ऑप्शन दे देंगे, आपको पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे रुपे कार्ड चलता है. ठीक है, नेपाल इज द 4th कंट्री आफ्टर भूटान, सिंगापुर एंड यूएई वेयर रुपे इज लाइव. नेपाल 4th जगह है. इसके अलावा कौन सी है? भूटान, सिंगापुर एंड यूएई. Nepal is also a part of International Solar Alliance. International Solar Alliance कौन सी कंट्रीज का अलायंस है? किसने स्टार्ट किया था ये? इंटरनेशनल सोलर अलायंस किसने स्टार्ट किया था? एक ही इंसान ने सही आंसर दिया है. अभी ख्याति ने सही आंसर दिया है. इंडिया एंड फ्रांस. फ्रांस का प्रेसिडेंट कौन था तब? फ्रांकोइस हॉलैंडी. याद रखना, इमैनुअल मैक्रोन मत लिखना. ठीक है, और मोदी जी, ओ सॉरी, मोदी जी. ठीक है, चलो फटाफट लिख लो. नए स्टूडेंट्स को पता चल रहा है. आर यू गेटिंग व्हाट हैज टू बी लर्न? क्या पढ़ना है, क्या लिखना है, जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं. ठीक है, 2 साल से मैंने एक भी स्टूडेंट का मुंह नहीं देखा, तो मैं आप लोगों को सिर्फ स्क्रीन पे ही देखता हूँ. ठीक है, आईएसए पे तो मैं इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ सकता हूँ. वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इट इज इन गुरुग्राम. पेरिस में नहीं, दिल्ली में नहीं, इट इज इन गुरुग्राम. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड. व्हिच कंट्रीज आर एलिजिबल टू बिकम अ मेंबर ऑफ द आईएस? द आंसर इज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड. यस, यूनाइटेड नेशन मेंबर्स. ठीक है, पहले क्या था? द कंडीशन वाज दैट द कंट्री व्हिच आर लोकेटेड बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. लेकिन बाद में ये कंडीशन को हटा दिया गया. ठीक है, which person recently won a gold medal at Women's World Boxing Championship? Let me repeat this question.
which person recently won a gold medal at Women's World Boxing Championship? पढ़ते लिखते नहीं हो आप लोग, ऐसे अच्छे अच्छे न्यूज, ठीक है? निखत जरीन, निखत जरीन, ठीक है? निखत जरीन, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, वेरी गुड. ओके गाइस, चले आगे. एवरीबडी गाइस, इंडिया एंड नेपाल रिलेशन इज इम्पोर्टेंट, प्लीज, ठीक है? चलो आगे चलेंगे. चीफ इलेक्शन कमिश्नर. ओके, सबसे पहले ये न्यूज पुराने स्टूडेंट्स को तो पता होगी, लेकिन आपके लिए रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है. क्यों? बिकॉज रिसेंटली 25th इलेक्शन कमिश्नर कौन बना है? राजीव कुमार. एंड राजीव कुमार रिप्लेस्ड विच पर्सन? मतलब उनके पहले कौन थे? सुशील चंद्रा. वेरी गुड. राजीव कुमार रिप्लेस सुशील चंद्रा एज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर. 25th नंबर के बने हैं वो, ठीक है? ओके, नाउ ये पीपीटी देखो. जो भी नए स्टूडेंट्स है, दे शुड नो हाउ टू मेक नोट्स. ये देखो, मैंने नोट्स बनाई है मेरी. किसको लेके? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को. मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं. क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स? दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. कब बनाई गई थी? 25 जनवरी 1950. इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? सेक्रेटेरिएट न्यू दिल्ली में है. 25 जनवरी को हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं भाइयों बहनों? वेरी गुड सिद्धांत. रिपब्लिक डे खुशी हम 26 को सेलिब्रेट करते हैं, 25 को नहीं करते हैं हम. 25 जनवरी को मैंने आपको इतना डिटेल में पढ़ाया था और तब भी आपको नहीं आ रहा है. ये बहुत दुख की बात है, बहुत बहुत दुख की बात है, ठीक है? 25 जनवरी को हम मनाते हैं क्योंकि तब भी मैंने गला फाड़ फाड़ के पढ़ाया था आपको. नेशनल वोटर्स डे. अभी याद आया? किसको याद आया? हाथ ऊंचा करो. हाँ, अभी सब यस लिख रहे हो. ये पता चलता है अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आपके साथ ऐसा धोखा हो जाएगा एग्जाम में भी, ठीक है? कितना सिंपल था ये, ठीक है? चलो आगे पढ़ते हैं. ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाले क्या करते हैं? तो वो लोकसभा के इलेक्शन करवाते हैं, राज्यसभा के करवाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब हमारे यहाँ पे जो विधानसभा होती है उसके इलेक्शन करवाते हैं. फिर काउंसिल होती है. इन सम स्टेट्स देयर आर आल्सो अ अपर हाउस. देयर इज आल्सो एन अपर हाउस. आप लोगों का होमवर्क ये है, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगा कि इंडिया में ऐसे कितने स्टेट्स है राइट नाउ which have a lower house as well as an upper house, ठीक है? अभी आंसर्स नहीं मैं पूछूंगा, नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, ठीक है? चलो कंटिन्यू. और उसके अलावा किसके? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस भी करवाते. किसके? प्रेसिडेंट एंड ओके, गोइंग अहेड. Election Commission of India since 1950 to 1989 it was a one member body. मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में सिर्फ एक ही इंसान बैठता था, ठीक है? बट इट बिकेम अ मल्टी मेंबर बॉडी इन फ्रॉम 1989, ठीक है? 1989. अभी कितने हैं टोटल? 3 मेंबर है. एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 सिर्फ ईसी इलेक्शन कमिश्नर.
कितने मेंबर की बॉडी होगी वो कौन डिसाइड करेगा? द आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कि मेरे को 2 मेंबर चाहिए, 3 चाहिए, वो कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। नाउ एट द स्टेट लेवल द इलेक्शन कमीशन इज हेल्ड बाय चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हु इज एन आईएएस ऑफिसर। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सपोज अहमदाबाद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ काम करना है तो वो कौन किसको बोलेंगे? अहमदाबाद के कलेक्टर को बोलेंगे जो एक आईएएस ऑफिसर होता है। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। रेजिग्नेशन किसको देना है? अगेन प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। एज लिमिट क्या है आपको इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बनने की? 6 साल या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। स्टेटस और सैलरी कितनी होती है आपकी? जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जितनी। और रिमूवल का प्रोसीजर क्या है? इट इज सिमिलर टू अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। इम्पीचमेंट विल बी अ रॉन्ग आंसर। कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए यूज किया जाता है। एम आई क्लियर? इम्पीचमेंट इज जस्ट फॉर प्रेसिडेंट। ठीक है, स्पेशल कैटेगरी है उनके लिए अलग से। ओके गाइस, क्रिस्टल क्लियर दिस टॉपिक? आई होप देयर इज नो डाउट इन दिस। अभी फटाफट लिख लो और कुछ डाउट हो तो पूछ लो। शेलराज, ठंड रखो ठंड। क्या कहता हूं मैं? ठंड रखो ठंड। केक कटेगा, सब में बटेगा। ठीक है, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो मेंशन नहीं है गाइस। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर आर्टिकल 324। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, is mentioned under article 324 to 329। ठीक है, पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो गाइस, एक बात बता देता हूं, आप याद रख सको तो ठीक है, जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सीईसी, सिर्फ उसी का ही रिमूवल प्रोसीजर इज सेम एज अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट। ये जो बाकी के जो 2 होते हैं नीचे के ईसी, उनको तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहे तो प्रेसिडेंट को रेकमेंड करके निकाल भी सकता है। ठीक है, उनके लिए प्रोसीजर ऑफ जज वाला सिमिलर नहीं। द जज वाला प्रोसीजर इज सिमिलर ओनली फॉर सीईसी। एम आई क्लियर? सिर्फ चीफ जो है, चीफ वाला बंदा, उसको ही सुप्रीम कोर्ट के जज का प्रोसीजर फॉलो करना होता है, बाकी के 2 को नहीं। ठीक है, लिख लो फटाफट। हाँ, आर्टिकल 148 तो कैट के लिए है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। ओके गाइस, एनी डाउट इन दिस या चले आगे भाइयों बहनों? ओके, तो भाइयों बहनों, माय क्वेश्चन फॉर यू इज, हमारे यहाँ पे जो अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है और जो पंचायत होती है, उनके इलेक्शन कौन करवाता है? पता चला मेरा सवाल क्या है?
द आंसर इज SEC, स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो ये अचानक आया कहां से? आपको पता होगा, जब 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या बनाया गया था? पंचायत इंस्टीट्यूशन। तो उसके अंदर मेंशन किया गया है अबाउट SEC, ठीक है। और 74th किसके लिए है? अर्बन लोकल बॉडीज के लिए। ये भी लिख लो, इंपॉर्टेंट है ये सारा का सारा इतना, ठीक है। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या आया था? पंचायत। एंड 74th से क्या आया था? अर्बन लोकल बॉडीज। पता चला आप लोगों को? ओके गाइस, चले आगे। ओके ओके गाइस, चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो आगे चलो। ब्लड मून, ब्लड मून, ब्लड मून, ठीक है। ओके, मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन, ठीक है। आपको पता चल जाएगा बहुत इजी, ठीक है। ब्लड मून पहले तो ये समझ लो कब होता है। मैं आपको कंडीशन बता रहा हूं कि ब्लड मून कब होगा। ब्लड मून विल ओनली अकर ऑन टोटल लूनर एक्लिप्स। पता चला? लूनर एक्लिप्स दो टाइप के होते हैं। एक पार्शियल होता है, व्हेन सन व्हेन अर्थ एंड मून आर नॉट टोटली इन अ स्ट्रेट लाइन, तब क्या होता है? पार्शियल। लेकिन जब अर्थ एंड मून आर एग्जैक्ट इन द सेम लाइन, तब क्या होता है? टोटल लूनर एक्लिप्स। और ब्लड मून कब होता है? ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज अ टोटल सोलर लूनर एक्लिप्स और ये लूनर एक्लिप्स। इतना पता चल गया पहले? एवरीबॉडी, आर यू फॉलोइंग मी ऑन दिस? When total lunar eclipse only occurs when Earth and Moon are in straight line, ठीक है, तब भी होता है। और and then only it is possible for blood moon। तो ब्लड मून क्यों होता है आपको पता होना चाहिए। विद योर जो रेड है, जो ब्लू लाइट है, उसकी वेवलेंथ क्या होती है? कंपैरेटिवली लेस इन कंपैरिजन टू रेड। सो स्काई का कलर क्या दिखता है आपको? ब्लू। बट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू द अर्थ, तो ब्लू वाला पार्ट सब अर्थ अट्रैक्ट कर लेता है, बट द रेड वाला पार्ट विच हैज लार्जर वेवलेंथ, वो पास कर जाता है और वो कहां पे गिरती है? मून के ऊपर। सो मून इज रेड इन कलर। पता चला? ऐसा समझ लो दैट ब्लू लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर में एब्सॉर्ब कर लिया, और जो बड़ी वेवलेंथ वाली रेड लाइट थी वो अर्थ से पास होके कहां पे गिरती है? ऑन द सरफेस ऑफ द मून, एंड सो मून अपीयर्स रेड। एम आई क्लियर गाइस? बस इसे कहते हैं ब्लड मून। अभी 4-5 दिन पहले 16 मई को आपको इस साल का सबसे पहला ब्लड मून देखने को मिला है। एम आई क्लियर? लिख लो। इसके बाद फोटो भी दिखाता हूं, आपके लिए लेके आया हूं, इसके पीछे है, ठीक है। ब्लू एंड पर्पल हैव शॉर्टर वेवलेंथ्स, जो मैंने आपको बताया। विबग्योर, VIBGYOR, जो रेड है जो लास्ट में आता है, उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से पास कर लेती है, ठीक है। बट जो वायलेट है, ब्लू है, ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ, दे आर सीन एज द कलर इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है, गिविंग द स्काई इट्स इंकी कलर। But red and orange have the highest wavelength and pass through our atmosphere। और वो रेड लाइट गिरती है मून के सरफेस के ऊपर और वो हमें दिखता है
लाल लाल टमाटर जैसा। आई होप आप सबको पता चला। एक ही मिनट, एक ही मिनट, एक ही मिनट। अरे यार गलती से कुछ हो गया है। अरे वो कैसे करते हैं, फुल स्क्रीन कैसे करते हैं? वेरी वेरी बैड एट दिस। आई हैव नो, वो क्या कहते हैं, आई हैव नो शेम। लाइक आई एम अ वेरी पुअर पर्सन व्हेन इट कम्स टू ऑल दिस थिंग्स। ओके, आई एम ट्राइंग टू डू, आई एम ट्राइंग टू डू। ओके ओके ओके, हैप्पी गाइस। यस, I only started using this PowerPoint and Word and everything when I started teaching you guys. Okay. So I don't know whatsoever about all these things. अब मान्या कौन से सेकंड पॉइंट की बात कर रहे हो आप? which exact part you are talking about? ओके, सेकंड एक्लिप्स कहाँ पे है? सेकंड एक्लिप्स, ओके। दिस इज, ओके, मैंने आपको बताया ना कि एक पार्शियल एक्लिप्स होता है और एक फुल एक्लिप्स होता है। तो पार्शियल एक्लिप्स तो ऑलरेडी एक बार हो चुका, ठीक है, पार्शियल सोलर एक्लिप्स तो हो चुका, देखो लिखा तो है। लेकिन द फर्स्ट लूनर एक्लिप्स पूरा वाला कब हुआ? अभी हुआ, ठीक है। एक्लिप्स तो होते हैं ना, सन के भी होते हैं, मून के भी होते हैं, हमें पता है, हमने पढ़ा था। सन का तो रिसेंटली गया, ठीक है। लेकिन अभी लुनार का पहली बार आया है, एंड इट्स अ फुल मून, ठीक है, ब्लड मून। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? ठीक है, अभी आपको सुपर मून क्या होता है वो बता देता हूं। देखो, अर्थ रोटेट करता है अपने एक्सिस पे, और अर्थ के बाजू में कौन रोटेट करता है? मून। तो जब भी अर्थ और मून के बीच में घूमते घूमते नजदीकियां बहुत बढ़ जाती है एक दूसरे के लिए, ठीक है, तो क्या होता है? मून हमको बड़ा दिखने लगता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सुपर मून। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? सुपर मून क्या होता है? व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज वेरी क्लोज, तो मून क्या अपने को बड़ा दिखता है? दिखता है कि नहीं दिखता है? ये देखो, नाउ यू विल गेट ऑल द पिक्चर्स। देखो, ब्लू लाइट कौन ले लेता है? अर्थ ले लेता है, और रेड लाइट पास हो जाती है, तो वो कहां पे गिरती है? ऑन द सरफेस ऑफ द मून, ओके। और सुपर मून कब होता है? व्हेन मून्स ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ एट द सेम टाइम मून इज फुल। फुल मून होना चाहिए, और मून हमारे काफी नजदीक होना चाहिए, ठीक है। ओके गाइस, फटाफट लिख लो, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर मून ऑल्सो? ओके, मजा आ रहा है या बोर हो गए आज? आज इतने बढ़िया भारी भारी टॉपिक नहीं है, ठीक है। આજે પેલા જેવું છે, જ્યુસ પીવાનું, કેરમ રમવાનું મજા નહીં લાગે, ઓકે।
ओके गाइस, हो गया, शुड आई गो अहेड? चले आगे। ओके ओके, कुरिल आइलैंड्स। लास्ट टाइम आप लोग मुझे कह रहे थे कि सर कुरिल आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है, तो आ गया कुरिल आइलैंड्स। देखो, कुरिल आइलैंड्स क्यों पढ़ा रहा हूं, एक्चुअली मैं नहीं पढ़ा था टू बी ऑनेस्ट, लेकिन रशिया इन्वॉल्व है और रशिया काफी न्यूज में रह रहा है, इसके लिए पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो अभी जो रशिया की मतलब ऑन अ ग्लोबल लेवल criticism as usual are raised against Russia. So जापान ने सोचा बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं, ठीक है। तो जापान ने अपना रोना शुरू कर दिया दैट हमारे जो कुरिल आइलैंड करके एक आइलैंड है जो हमारे बहुत ही नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा नॉर्दर्न पार्ट में लोकेटेड है, वो रशिया के इलीगल ऑक्यूपेशन के अंडर है सिंस 1945। पता चला कुरिल आइलैंड्स आर लोकेटेड टू द एक्सट्रीम नॉर्थ ऑफ जापान, ठीक है, विच इज वेरी क्लोज टू रशिया। और वहां पे किसका डायरेक्ट कंट्रोल है अभी? रशिया का। ये कब हुआ डायरेक्ट कंट्रोल? द आंसर इज दैट इन द वर्ल्ड वॉर टू रशिया एंड जापान वेर इन द अपोजिट कैंप्स, आपको पता होगा, एंड रशिया ऑक्यूपाइड दिस रीजन, ठीक है, आफ्टर डिफीटिंग जापानीज, ठीक है। सो सिंस 1945 दिस टेरिटरी इज अंडर द ऑक्यूपेशन ऑफ रशिया, ठीक है। समझ रहे? जापान क्या कहता है कि भाई साहब ये तो हमारा है सिंस 19th सेंचुरी, ठीक है। रशिया कहता है कोई बात नहीं, ये हमारा है सिंस 1945, ठीक है। लिख लो फटाफट। रशिया अगर ऐसा कहता है यूक्रेन के बारे में कि यूक्रेन इज अवर टेरिटरी सिंस 16th सेंचुरी, तब अमेरिका और जापान को मजा नहीं आता। बट जापान इज गिविंग द सेम आर्ग्यूमेंट्स कि ये तो हमारा है सिंस 19th सेंचुरी, ठीक है। आप समझ रहे हो ना इसे क्या कहते हैं? फटाफट लिख लो। हिपोक्रेसी, वेरी गुड। This island is located between Sea of Ostok and Pacific. कहां पे लोकेटेड है? Sea of Ostok and Pacific. अब ब्लू बुक कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ब्लू बुक इज लाइक अ डॉक्यूमेंट ऑफ जापान फॉरेन मिनिस्ट्री, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ब्लू बुक इसका एक पेपर, रिसर्च पेपर डालते हैं ना, ऐसा है, ठीक है। बट दैट इज लॉन्च बाय जापान मिनिस्ट्री ओनली, ठीक है, कि उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब किया है दैट कुरिल आइलैंड इज अंडर द इलीगल ऑक्यूपेशन ऑफ रशिया, ठीक है। Do you guys know that Alaska was a part of Russia? पता है आपको? Alaska used to be a part of Russia, and Russia, for some small amount of money, sold it to United States. Yeah, insane mistakes. Okay, insane mistake. अच्छा हुआ रशिया के लोग नहीं कहते हैं वहां पे कि ये तो उस प्रेसिडेंट और उस प्राइम मिनिस्टर की गलती की वजह से हुआ था। थैंक गॉड। इमेजिन इंडिया में किसी ने ऐसा किया होता, हम सुपर पावर होते, लेकिन वो होता, ये था इसके लिए नहीं, वो था उसके लिए नहीं, ठीक है। क्या बातें करते हैं हमारे लोग, ठीक है। ओके गाइस, चले आगे। देखो ये सबके सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये मैं खुद लिख के लाया हूं, ठीक है, इसके लिए। चलो आगे चलते हैं। देखो भाई, जी करता है दिला दूं तेनू बुर्ज खलीफा, ठीक है, सुना है ना ये गाना आपने, मेरा फेवरेट सॉन्ग है, ठीक है। तो ये बुर्ज खलीफा जिसके नाम से बना था वो कौन थे? यूएई के प्रेसिडेंट
शेख खलीफा बिन जायद अल नायान, वो रिसेंटली गुजर गए हैं, ठीक है। कौन थे ये? तो ये जो बिन जायद है, जो फाउंडर थे यूएई के, उनके बेटे थे, ठीक है। कौन थे? सुल्तान शेख जायद जो थे, who is considered as the founder of UAE, उनके बेटे थे, ठीक है। He was the president of UAE, शेख खलीफा की बात कर रहा हूं, since 2004, ठीक है। He was the country's second president and he succeeded his father Sheikh Zayed. Now Sheikh Zayed is considered as the founder of UAE, ठीक है। अभी उनकी जगह कौन लेगा शेख खलीफा की? his brother his brother Prince Mohammed bin Zayed, ठीक है। Am I clear guys? अभी आप मुझे ये बताओ, why do you think this is important? Why UAE is important? मैं आपको एक चांस देना चाहता हूँ. I want to see that are you guys capable of interconnecting some things? ये वो actually new students के लिए, पुराने वालों को तो पता होगा. Very good Sharon, very good. Because we signed a free trade agreement with UAE, guys. Very good, very good. इसके लिए ये important है, ठीक है? हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था यूएई और इंडिया के बारे में. आई होप यू गाइस रिमेंबर, ठीक है. और ये मैं मजाक नहीं कर रहा था, आप लोगों को अगर लगता हो तो. जो ये बुर्ज खलीफा है, ठीक है, वो इनके नाम पे ही रखा गया है, शेख खलीफा के नाम, ठीक है. वो मैं मजाक नहीं कर रहा था. यस हर्षिल, यस यस. ये अभी सबके सब जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, दे आर लाइक बीइंग वेरी स्मार्ट. ओके, बीइंग सऊदी अरेबिया, बीइंग यूएई. You should know about Abraham Accords, guys. I hope you remember. Abraham Accord is the normalization of relation and having formal relation of Israel with Israel के और किसके साथ? Abraham Accords. सिद्धांत सिर्फ यूएई, नॉट बहरीन. बहरीन के साथ भी रिश्ता नॉर्मल हुआ है, लेकिन when we talk about Abraham Accords, it's only UAE and Israel. Yes, USA broker the deal, ठीक है. USA वैसे भी एक ही काम करता है, अच्छा, दलाली करना, ठीक है. ओके गाइस, चले आगे. हाँ, 40 डेज का मॉर्निंग पीरियड है. वो झंडा हाफ मास्ट पे फ्लाई करेगा और 3 दिन के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और वो सब बंद कर दिया था, ठीक है. ये सब कुछ मेरे दोस्त लोग और मेरे कजिन्स लोग तो वीरदास का शो देखने जाने वाले थे, तो वो भी कैंसिल करवा दिया, ठीक है. हाँ, इंडिया ने भी डिक्लेयर किया था नेशनल मॉर्निंग. यस यस गाइस, यू ऑल ऑफ यू आर वेरी राइट. ओके, एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड दैट यू आर कवरिंग ऑल दिस इम्पोर्टेंट न्यूज आल्सो. ओके, दैट इज वेरी गुड जॉब ऑन योर साइड. ओके गाइस, चले आगे. चलो, ये फोटो आई होप आप सबने देखा होगा. द फर्स्ट इमेज of Milky Way galaxy supermassive black hole. Guys, हमारी जो गैलेक्सी है which is called as Milky Way, उसके एग्जैक्ट सेंटर में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल था, उसका फोटो फॉर द फर्स्ट टाइम वाज क्लिक बाय इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ठीक है. सबसे पहला सुपरमैसिव ब्लैक होल का फोटो कब खींचा गया था? 3 years ago in 2019. बट वो किसी और गैलेक्सी का था, ठीक है. बट फॉर द फर्स्ट टाइम हमारी गैलेक्सी के बिल्कुल बीचों बीच जो
ब्लैक होल था उसका फोटो खींचा गया है, ठीक है। किसने खींचा है ये? इंटरनेशनल कंसोर्टियम इवेंट होराइजन टेलीस्कोप, ठीक है। It is a collection of 8 synchronized radio telescope around the world. ये 8 रेडियो टेलीस्कोप एक साथ काम करते हैं और उसका नाम क्या है? इवेंट होराइजन टेलीस्कोप. Black hole has been captured at the center of our Milky Way और उसका नाम क्या रखा गया है? नामकरण क्या रखा है उसकी? फुई. फुई रखती है ना हमारे हमारे यहाँ पे नाम कौन रखती है? फुई, पिया, आई गेस, ठीक है। तो क्या नाम रखा है? सेजिटेरियस ए, ठीक है, सेजिटेरियस ए, नियर द बॉर्डर ऑफ सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियन कॉन्स्टलेशन, ठीक है। ये ब्लैक होल की साइज कितनी है? इट इज 4 मिलियन टाइम्स मोर मैसिव देन अवर सन. 4 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है. किससे? सन से. लीगो करके जो साइंटिफिक ऑब्जर्वेटरी है, they announced the first detection of gravitational waves. Guys, gravitational waves कब create होते हैं? When a black hole merges together, ठीक है। जब ब्लैक होल मर्ज होते हैं तब ग्रेविटेशनल वेव्स जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोले थे वो आप अगर कुछ करो तो आप डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर? इस न्यूज को समझना नहीं है, रट्टा मारना है अगर कुछ ना पता चले तो, ठीक है। समझ गए? टेंशन में मत आ जा. आपको पता होना चाहिए कि हमारी गैलेक्सी के अंदर जो रिसेंटली फोटोग्राफ किया गया हुआ ब्लैक होल है उसका नाम क्या है वो पता होना चाहिए. कौन से टेलीस्कोप ने ढूंढा है वो पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रेविटेशनल वेव्स किसने ढूंढे हैं? लीगो ऑब्जर्वेटरी है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड? मैं आपको क्वेश्चंस भी फ्रेम करके दिखा रहा हूं, ठीक है। चलो लिख लो फटाफट. हो गया गाइस, हो गया. यस, ટેલિસ્કોપ નું નામ છે ઇવેન્ટ હોરાઇઝન. ओके गाइस, ब्लैक होल कब बनता है? आप में से किसी को आइडिया है? ब्लैक होल कब बनता है? when is a black hole is formed? Yes, when a big star, when a big star dies, a black hole is created. हर स्टार ब्लैक होल नहीं बन सकता, बहुत ही बड़ा होना चाहिए स्टार का साइज तभी बनता है ब्लैक होल, ठीक है। हमारा जो सन है वो जब मरेगा तब वो ब्लैक होल नहीं बन पाएगा बिकॉज उसकी साइज बहुत छोटी कंसिडर की गई है, ठीक है। यस, सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है. वेरी गुड गाइस, यार आई एम रियली इम्प्रेस्ड गाइस. या आप सबको पता है? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड. चलो आगे चलते हैं. ओके, चलो. यस वैभव, यू आर राइट, ठीक है. चलो
थॉमस कप, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, ठीक है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं थॉमस कप है क्या। तो थॉमस कप इज ऑल्सो रिफर्ड एज वर्ल्ड मैन्स टीम चैंपियनशिप। क्या कहते हैं उसे? वर्ल्ड मैन्स टीम चैंपियनशिप। इट इज एन इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप that sees participation from all member nations of the Badminton World Federation, BWF, the governing body of the sport. Thomas Cup can be associated with वर्ल्ड कप इन क्रिकेट। जैसे क्रिकेट के लिए वर्ल्ड कप है, वैसे ही बैडमिंटन के लिए क्या माना जाता है? थॉमस कप, ठीक है। थॉमस कप is organized every 2 years since 1980 को। हर 2 साल के बाद क्या किया जाता है ऑर्गेनाइज? थॉमस कप, ठीक है। इंडोनेशिया इसमें सबसे आगे रहता, बाई बिकॉज इंडोनेशिया हैज वॉन 14 टाइम्स, फॉलोड बाय चाइना जो 9 बार जीता है। अदर नेशंस that have lifted the cup beside Indonesia and China are मलेशिया भी जीत चुका है, जापान भी जीत चुका है, डेनमार्क भी जीत चुका है, एंड नाउ इन दिस elite list even India is also included, ठीक है। पहले इतना लिख लो, फिर इसके बाद पढ़ेंगे। पहले इतना लिख लो। This is very important. Every detail is important. Okay. Okay, guys. बरमूडा ट्रायंगल से हमारा क्या लेना देना है अभी? अच्छा, ओके, चलो आगे चलिए। नाउ यू गाइस जस्ट नीड टू नो दैट हमारे कौन से प्लेयर्स थे जो ये सब कप जीतने में हमारा मदद किया है। एक लक्ष्य सेन आपको पता होगा। फाइनल्स में कौन खेले थे? श्रीकांत कदम, ऐसा कुछ नाम था, मैं भूल गया। ओके, एक ही मिनट का गाइस, ये नीचे नहीं आ रहा, मैं पढ़ नहीं पा रहा। हाँ, India have become Thomas Cup champions. India's scripted history by beating 14-time champion Indonesia. 3-0 से हमने हराया, ठीक है। Can you imagine? We won by defeating the best team in Thomas Cup, Indonesia. ठीक है, it's a very brilliant achievement. This is the first time that India has become a Thomas Cup champion. Kadam Shrikant beat Jonathan Christie in 2 straight games. ठीक है। लक्ष्य सेन जो थे, he opened India's winning streak when he defeated the Olympic bronze medalist of Indonesia, Anthony Ginting, ठीक है। इंडिया में डबल्स डुओ, क्या नाम है इसका? विकास राज रेड्डी एंड चिराग शेट्टी, दे ऑल्सो वॉन, ठीक है।
Kidam Shrikant versus Jonathan Christian was the third game of the finals. ठीक है, कौन कौन इंपॉर्टेंट है? Kadam Shrikant is important because he played the finals. Who started with winning? Lakshya Sen. और डबल्स कौन थे? रेड्डी और शेट्टी. ठीक है, सुनील शेट्टी नहीं, चिराग शेट्टी और रेड्डी. ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग इट? लिख लो फटाफट. Okay, guys, should I go ahead? लिख लिया. Everybody, should I go ahead? Okay, guys, come, let's. वैभव को मुझे देखना पड़ेगा. And Vaibhav, try to understand this thing. We cannot cover every little website. ठीक है? Because n number of websites are opened by government and their departments. ठीक है? But I will see what is it about. ठीक है? देख लूंगा एक बार. Okay. Recently, देवेशम पिल्लई करके बहुत ही पुराने एक इंसान थे. तो आउट ऑफ सम वो काफी न्यूज में रहे. द रीजन इज ही वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेंट बाय पोप फ्रांसिस. वो वेटिकन सिटी में जो बैठते हैं ना, वो वाले जो कैथोलिक चर्च है, वो वाले पोप फ्रांसिस को उन्होंने डिक्लेयर किया है दैट वी विल गिव हिम अ सेंटहुड. क्या बोलेंगे हम इनको आज से कि ये एक संत थे. तो अचानक से ऐसा तो क्या हो गया, तो उनके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा. बिकॉज गिविंग सेंटहुड टू अ लेमैन पर्सन, लेमैन मतलब बहुत ही कॉमन इंसान, समझ रहे हो लेमैन क्या होता है? वैसे सेंटहुड बनने के लिए बहुत ही लंबा प्रोसीजर होता है. पहले आपको फादर बनना पड़ता है, फिर बिशप बनना पड़ता है, फिर आर्च बिशप बनना पड़ता है. ये सब बहुत ही लंबी प्रक्रिया होती है. ठीक है, लेकिन एक लेमैन को बना दिया गया है सेंट. तो पढ़ते हैं क्यों बनाया गया. ठीक है, तो ये देवेशम पिल्लई करके थे. तो ही वाज अ बोर्न हिंदू, बट देन ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू क्रिश्चियनिटी. ठीक है, ही एंड देन क्या हुआ कि जो उनके जो नेटिव रिलीजन वाले थे, मतलब जो उनका पहले वाला रिलीजन था, उनके लोगों को ज्यादा मजा नहीं आया. एंड दिस देवेशम पिल्लई ही यूज्ड टू वर्क इन द स्टेट ऑफ त्रावणकोर. ठीक है, त्रावणकोर तो पता है ना, केरला वाला रीजन, द स्टेट ऑफ त्रावणकोर. तो वहां पे फिर काफी लोगों ने मिलके इनको थोड़ा खत्म कर दिया, मतलब उनका मार डाला उनको. ठीक है, बट ऐसा क्यों किया? बिकॉज ही वॉज अ relentless फाइटर अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन prevalent इन द कंट्री. ठीक है, सो ही वॉज प्रोसिक्यूटेड एंड देन किल्ड. ठीक है, तो वेटिकन सिटी ने बोला दैट वी रिकॉग्नाइज हिज मार्टिरडम, सो दैट हम ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ये सब डिस्क्रिमिनेशन करना बुरी बात है, कम्युनलिज्म करना बुरी बात. ठीक है, दैट ही स्टूड फॉर इक्वालिटी एंड ही फॉट अगेंस्ट द एविल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कि ये सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड वी आर ऑल इक्वल. ठीक है, समझ रहे हो क्या है? इसलिए देवेशम पिल्लई को सेंटहुड दिया गया है बिकॉज ऑफ हिज सैक्रिफाइस टू प्रमोट इक्वालिटी. समझ गए?
क्या थी वो, इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो वो तो अभी मैं क्या बताऊं। देखो मेरे हिसाब से तो ये इम्पोर्टेंट इसके लिए है बिकॉज ही इज अ इंडियन पर्सन, सबसे पहली बात। और पॉप फ्रांसिस हर दूसरे दिन को किसी को सेंट बनाते नहीं है। सेंट बहुत कम लोगों को बनाया जाता है, और वो भी सोच समझ के बनाया जाता है। और वैसे भी लेमैन को तो कभी नहीं बनाया जाता, ठीक है, बहुत रेयरली बनाया जाता है। तो ये रेयर न्यूज है, ऐसा मैं कह सकता हूँ, इसके लिए हम पढ़ते हैं, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन सेक्शन में पूरा पूरा पेज आया था इनके बारे में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिटेल में दिया था कि त्रावणपुर में काम करते थे, लोग उनको परेशान करते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। मैंने कितनी बार बोला है आप लोगों को, like Indians getting any kind of recognition anywhere, इंडियन को एक छोटा सा मेडल भी देना कहीं पे, तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इंडियंस को, इंडियन ओरिजिन पीपल को, इन सब लोगों को, ठीक है। Okay guys, are you done with this? Let's go ahead then. चले आगे गाइस। ओके ओके, लेट्स गाइस, दिस इज अ वेरी फैक्चुअल न्यूज, ठीक है। वैसे तो नहीं पढ़ाने वाला था, लेकिन फिर सोचा रिस्क क्यों लेना, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डाल के लाया हूँ। राजनाथ सिंह ने रिसेंटली आईएनएस इंडियन नेवल सर्विस सूरत और उदयगिरी को लॉन्च किया है। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये दोनों शिप को डिजाइन किसने किया है, इंडियन नेवी खुद ने किया है। इंडियन नेवी के अंदर डायरेक्टोरेट ऑफ नेवल डिजाइन जो होता है, एक डिपार्टमेंट, उन्होंने इसे डेवलप किया है, ठीक है। 15B प्रोजेक्ट क्या है, इसमें क्या है, टोटल 4 डिस्ट्रॉयर बनेंगे। क्या बनेंगे, प्रोजेक्ट 15B में टोटल 4 डिस्ट्रॉयर बनेंगे। पहले डिस्ट्रॉयर का नाम क्या है, विशाखापट्टनम, इसके बारे में भी मैंने पढ़ाया था। मार्मोगोआ के बारे में शायद नहीं पढ़ाया था, इम्फाल के बारे में भी नहीं पढ़ाया था, लेकिन आज सब हो गया। और चौथी का नाम क्या है, सूरत। प्रोजेक्ट 15B के अंदर 4 डिस्ट्रॉयर बनाए जाएंगे, विशाखापट्टनम, मारगोआ, इम्फाल एंड सूरत, ठीक है। और प्रोजेक्ट 17A के अंदर एक है 15B और दूसरा है 17A के अंदर 3 फ्राइगेट्स बनाए जाएंगे। 3 क्या बनाए जाएंगे, फ्राइगेट्स, ठीक है। लिख लो, उसमें जो रिसेंटली थर्ड है उसका नाम क्या है, उदयगिरी, ठीक है। चलो फटाफट।
अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के बारे में स्टडी करना है, क्या वो न्यूज़पेपर में आता है, क्या उसके ऊपर चर्चा होती है, कुछ डिबेट्स होते हैं, ऐसे हाईवे के बारे में पढ़ना, अच्छा होती है तो पढ़ लो जामनगर अमृतसर के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? हर्षिल तो पढ़ लेना, ठीक है। ओके गाइस, शुड आई गो अहेड? चलो, अरे यार क्या क्या बात है। हाँ भाई, ये कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसके बारे में कुछ बातें करनी है। देखो, ये कुतुब मीनार को लेके एज यूजुअल जो हमारा इंडिया का ब्रेड बटर वाला सिनारियो है, तो चाइना है, ये सारी चीजों में बहुत आती है, ठीक है। तो कुतुब मीनार को लेके क्या है कि ये सेम स्टोरीज लाइक इट वाज, स्टोरीज एज इन जो बातें होती है, जो डिस्प्यूट होता है, लाइक इट वाज कंस्ट्रक्टेड आफ्टर डिमोलिशिंग हिंदू एंड जैन टेंपल्स एंड व्हाटएवर द केस मे बी, ओके। बट व्हाट वी शुड नो कि आपको कुतुब मीनार किसने बनाया है वो आना चाहिए, हमें एग्जाम निकालना है, ठीक है। पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है तो डिबेट करने बैठना, याद रखना मेरी बात। अगर पढ़ाई में आगे बढ़ना है तो अपना काम से काम रखना। कुतुब मीनार किसने बनाया वो मुझे बताओ यार, कुतुब मीनार के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। हाँ, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है कुतुबुद्दीन ऐबक? यस, ये कुतुबुद्दीन कौन है ऐबक? तो आपने मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा, मोहम्मद गोरी, ठीक है। मोहम्मद गोरी का स्लेव था। ही फाउंडेड द दिल्ली सुल्तानेट। क्यों, कौन? दिल्ली सुल्तानेट किसने ढूंढा? हु इज द फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तानेट? द आंसर इज कुतुबुद्दीन ऐबक, द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी क्या है, आके इधर मारामारी करके वापस चला जाता था अफगानिस्तान, ठीक है। बट बाद में वो लास्ट टाइम आया घूमने तो उसने अपने स्लेव को छोड़ दिया यहाँ पे, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो वो खुद राजा बन गया बाद में, ठीक है। तो उसने कुतुबुद्दीन ये कुतुब मीनार बनाना शुरू किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसने ऐसा क्यों किया? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, क्या नाम है? बख्तियार काकी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करके एक सूफी सेंट थे, उनकी मेमोरी में कुतुब मीनार बनाया गया है। पता चला आपको? आर यू गाइस क्लियर अप टिल नाउ? ठीक है। देखो भाई, मेरे को कोई पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, किसने बनाया, कौन सा स्तंभ बनाया, वो सब मेरे को नहीं पता, मेरे को बख्श लो। मैं थक गया हूँ 2014 से, ठीक है। हाँ, वेरी टायर्ड, वेरी टायर्ड। मैं आपको जो नॉर्मल नॉलेज है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मल नॉलेज। सो कंटिन्यूइंग माय पॉइंट, तो जब कुतुब मीनार बनना शुरू हुआ तो उसके बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक गुजर गए। तो बाद में पूरा बनाया किसने? द आंसर इज इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। ये सब आपके बुक में भी दिया है और ये सब न्यूज़पेपर में भी आता है, ठीक है। तो पूरा कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने, ठीक है। लेकिन आगे जाके क्या हुआ, उसका ऊपर का थोड़ा पार्ट टूट गया था कुतुब मीनार का। तो एक और भाई साहब आए जो तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, जिनका नाम है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, उसने भी उसने थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करवाया। तो तीन भाई साहब ने बनाया है कुतुब मीनार, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। एम आई क्लियर? पॉलिटिक्स पे नहीं, लेकिन कोई आपको एक नॉर्मल जीके बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ताजमहल को क्या है वो नहीं पूछ सकते, लेकिन ऐसा आपको डेफिनेटली पूछ सकते हैं ताजमहल किसने बनाया है, समझ रहे हो? या ताजमहल कहाँ पे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा, ठीक है। आर यू गाइस क्लियर? आप लोगों का दिमाग है ना बिगड़ गया है, गंगा नहीं यमुना। वेरी गुड, ऐसा बोलो मुझे कि सर आप गलत बोले, यमुना आएगा। वेरी गुड, ठीक है। और किसने अभी को विक्रमादित्य के पिलर के बारे में बात की थी? गाइस, वो अलग पिलर है, ठीक है। जो विक्रमादित्य पिलर है दैट इज अ
पिलर ऑफ मेटल, वो आयरन का बना हुआ पिलर है, समझ रहे हो? वो आयरन पिलर है, वो कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में ही लोकेटेड है, बट वो अलग पिलर है, समझ गए? ये सब क्लियर हो गया गाइस? ठीक है, चलो आगे चलेंगे। अच्छा, वीट एक्सपोर्ट बैन, गाइस इसके बारे में पता है या मैं ज्यादा पढ़ाऊं आपको? देखो भाई, वर्ल्ड में हाईएस्ट वीट प्रोड्यूसिंग नेशन इज रशिया, फॉलोड बाय इंडिया। इतना क्लियर हो गया? देखो गाइस, बहुत सारे डिस्प्यूट है, ठीक है? वैसे अमेरिका भी बहुत ज्यादा बनाता है, बट इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, फॉलोड बाय फॉलोड क्या, पहले रशिया। इवन यूक्रेन इज द सिक्स्थ लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ व्हीट। कौन? यूक्रेन। तो अभी आपको पता चल गया होगा दैट यूक्रेन तो अभी कुछ कर नहीं सकता, उसका तो बैंड बजा दिया है, और रशिया का बैंड लोगों ने बजाया है। रशिया के साथ आप बिजनेस नहीं कर सकते, पता चला? तो व्हीट का ऑलरेडी प्रॉब्लम हो गया कि नहीं हो गया? द हाईएस्ट एक्सपोर्टर इज नॉट एबल टू सेल। इवन यूक्रेन विच इज कंसिडर्ड एज अ एग्रीकल्चरली एडवांस कंट्री, वो भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर थोड़े फॉर्म में आके बोल दिए थे एक जगह पे कि आप चिंता मत करो, हम भेज देंगे, ठीक है? हाँ हाँ, श्रीनिधि का ये ब्लैंकी है, क्योंकि ये मुझे सिर्फ न्यूज पढ़ाना है, ठीक है? आपके पास नॉलेज होनी चाहिए इसकी, ठीक है? अगर कुछ गलती से आपको दे दे तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है? कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो आवर प्राइम मिनिस्टर एट वन प्लेस ही सेड दैट डोंट वरी, इंडिया है ना, मैं हूं ना, ठीक है? लेकिन 2-3 दिन बाद उन्होंने कह दिया कि भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे को ये एक्सपोर्ट बैन करना पड़ेगा। किसका? व्हीट का। नाउ व्हाट वाज द रीजन गिवन बाय इंडिया? द रीजन इज दैट वी हैव सफर्ड प्रोडक्शन लॉस। व्हाई? बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट्स। पता चला? एक्सट्रीम हीट इज नॉट गुड फॉर व्हीट, लेकिन तापमान तो आप सबको पता है कितना है, तो उसके कारण क्या हो गया? देयर इज लो प्रोडक्शन। दूसरा, देयर इज ऑलरेडी अ वेरी हाई प्राइस राइज इन व्हीट। समझ रहे हो? व्हीट की ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा है। बिकॉज ऑफ कोविड, जो गवर्नमेंट के गोडाउन में व्हीट था वो भी काफी कम है, एंड वी हैव अ 1.3 बिलियन पीपल टू फीड। समझ रहे हो? और ऑलरेडी प्रोडक्शन कम हुआ है। सो ड्यू टू ऑल दिस रीजन, सरकार ने बोला कि पहले हम हमारे लोगों को खिला दे, तो उसके लिए थोड़े टाइम के लिए हमें व्हीट के एक्सपोर्ट को बैन करना पड़ेगा। आर यू गाइस क्लियर? Okay, but my important question is that which authority has the power to ban this exports or imports? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में हम काफी बार पढ़ चुके हैं। अरे वेरी गुड सिद्धांत, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड ऋषिक। प्लीज राइट डाउन DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। DGFT, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। क्लियर गाइस? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। ओके, चलू मैं आगे भाइयों बहनों। ओके ओके, दैट्स गुड। फैक्चुअल न्यूज है गाइस, आप सबको पता होगा 2 महीने पहले जो फ्रांस में इलेक्शन हुए थे उसके प्रेसिडेंट कौन जीत गया है? अगेन इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है? सो फॉर हिज न्यू कैबिनेट, हिज ओल्ड प्राइम मिनिस्टर रिजाइन। उनका नाम क्या है? जीन कैस्टेक्स। ही रिजाइन, एंड उनकी जगह प्राइम मिनिस्टर मैक्रोन ने किसको सिलेक्ट किया है? द आंसर इज एलिजाबेथ बॉर्न। France will be getting its female prime minister after 30 years, ठीक है? इसके पहले कौन थे?
any female prime minister? Her name was Edith Cresson. ठीक है? She was the first woman prime minister of France from 1991 to 1992 under the socialist president Francois Mitterrand. ठीक है? Are you guys clear? अभी कोई मुझे ऐसा पूछेगा कि वुमन के बारे में कि हम why are we studying about the prime minister of France? The answer is, मैंने आपको हमेशा से बताया है that any woman, वो कहीं पे भी किसी भी जगह भी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बनती है कोई सी भी कंट्री की, तो हमें उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. Are you getting my point? लिख लो फटाफट. અંશ આટલી બધી ઉતાવળ યાર, આટલામાં થાકી ગયો યાર, હજુ 10 મિનિટની વાર છે. ઓકે ગાઈસ, should I go ahead? ચલો. राजीव गांधी असैसिनेशन केस. ओके गाइस, पहले ये बात समझ लो कि राजीव गांधी को क्या हुआ था, that he was assassinated by members of LTTE. ठीक है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम. पता चला, LTTE, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम. ठीक है, उस जमाने में सबसे पहली बार वर्ल्ड में सबसे पहला एग्जाम्पल ह्यूमन बॉम्ब का वो LTTE ने वर्ल्ड को दिखाया था. ठीक है, कि ऐसा कुछ भी आप बना सकते हो, आप लोगों में क्रिएटिविटी होनी चाहिए. ठीक है, कब हुआ था असैसिनेशन? इन विच ईयर? ये आपका क्वेश्चन हो गया. इन विच ईयर राजीव गांधी वाज असैसिनेटेड? वेरी गुड, 1991. Rajiv Gandhi was assassinated during a poll rally by a woman suicide bomb in May 21, 1991 at Sri Perumbudur in Tamil Nadu. तो उनके जो 4 कन्विक्ट थे उनको डेथ सेंटेंस दिया गया था. ठीक है, क्या है नाम, क्या है उनका? नलिनी, संथानम, मुरुगन और पिरारी बलन. ठीक है, इन 4 को दिया गया था. फिर क्या हुआ? एक ही मिनट. ओके ओके, ये उम्र को ऊपर लाना पड़ेगा. जस्ट अ मोमेंट. हाँ, टाडा कोर्ट ने 1998 में इन 4 लोगों को क्या बोला कि भाई आप लोगों को डेथ सेंटेंस दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? दे अपहेल्ड द सेंटेंस कि चलो भाई ये ठीक है, लेकिन इनको आप लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देते हैं. क्या करेंगे? इनको हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे देंगे, डेथ नहीं देंगे. ठीक है, बट देन दे अपील टू द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु कि आप हमारी सजा को थोड़ा कम कर दीजिए. अंडर आर्टिकल 161, प्लीज राइट डाउन दैट अंडर आर्टिकल 161 एनी पर्सन हैज अ राइट फॉर मर्सी. तो उसके लिए गवर्नर से बात करनी पड़ती है. कौन सा आर्टिकल मैंने बोला?
161. In the same way, if you have committed any central crimes or any central offenses, तो उसके लिए प्रेसिडेंट से माफी मांगनी पड़ेगी. तो वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? पढ़ा है किसी ने इस केस के बारे में? न्यूज़पेपर में आता है ये रोज, 3-4 दिन से तो खास. आर्टिकल 72. यस, प्रेसिडेंट से मर्सी पिटीशन फाइल कब की जाती है? यूजिंग आर्टिकल 72. पता चला. गवर्नर से कब मांगी जा सकती है? 161. और प्रेसिडेंट से कब मांगी जाती है? आर्टिकल 72. ओके गाइस, आर यू गेटिंग इट? ठीक है, ओके ओके ओके. सो ये केस चल रहा था. देन सुप्रीम कोर्ट में ये केस हुआ. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला रिसेंटली दैट we are using powers under Article 142. Article 142 gives absolute power to Supreme Court to do complete justice. Article 142 क्या करता है? It gives absolute power to Supreme Court. मतलब सुप्रीम कोर्ट जो पेपर में लिखेगा वो फाइनल. ठीक है, to do complete justice. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये भाई साहब तो 31 साल से जेल में रहे हैं, तो अब इनको छोड़ देना चाहिए. ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको मार्च 2022 में बेल भी ग्रांट कर दी थी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके ओके, राइट डाउन गाइस. नेक्स्ट लेक्चर में, मतलब मैं अभी से कह रहा हूं, ये सिर्फ मैंने आपको बेस बनाया है इस लेक्चर में. लेट मी गिव यू दिस लिटिल पॉइंट हियर. आज हमने बहुत ही सुपरफिशियली इस टॉपिक को कवर किया है. आई विल बी टॉकिंग इन डिटेल अबाउट आर्टिकल 72 एंड आर्टिकल 161 इन नेक्स्ट लेक्चर. ठीक है, मुझे आज ही बहुत ज्यादा आपको बता के बर्डन नहीं करना था. समझ रहे हो माय पॉइंट? This is just a base. We will talk about कि commutation क्या होता है, pardon क्या होता है, remission क्या होता है, respite क्या होता है, and what is the difference between the pardoning powers of president and governor. दोनों के powers के बीच में भी difference है guys. president के powers थोड़े से अलग है, governor के कुछ अलग है. ये सारा मैं डिटेल में करवाऊंगा in next lecture. ओके, लिख लो. आधे बच्चे का हवा निकल जाता है 1.5 घंटे का. क्लासरूम में होते ना तो आप सबको सीधा कर देते. एक बार आए मतलब आए, बाहर ही नहीं जाने. ओके गाइस, चले आगे एवरीबॉडी. ओके, लेट्स गो. अरे वाह, खत्म हो गया देखो. ओके गाइस, सो दैट विल बी ऑल. नेक्स्ट टाइम बढ़िया आप. If you guys want some important relevant topics that should be covered by me, I am open for suggestions. And if I find it relevant, then I will definitely cover it. So आप बोल सकते हो अगर आपको कोई फरमाइश हो आपकी तो. वरना बाय बाय. Yes guys, please revise. तेजो महालय के बारे में तेरी औकात नहीं है देखो. ठीक है, वो सब बड़े बड़े लोगों का काम है. हमारा मतलब हम तो साधारण इंसान है. मैं मेरे बाजू के मंदिर में नहीं जाता ना, तो दूर ऐसे बड़े बड़े मंदिर में तो जाने का मतलब ही नहीं है. वो भगवान ही जाने अभी. ठीक है, आपने पौवा खावाना, फाफड़ा जलेबी, बस हिंदी बाजार कहीं. स्वीडन नॉर्वे इज इन द एजेंडा नेक्स्ट टाइम. ठीक है, वो ऑलरेडी एजेंडा में है. ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट. निखात जरीन के बारे में तो पढ़ लिया हमने. हाँ हाँ, यस ऋषित, दैट इज इनफ.
निखत सरीन के बारे में तो इतना काफी, आई डोंट थिंक सो इसके डिटेल में कुछ जाना चाहिए। ओके ओके गाइस, बाय बाय।